تو میں وہ اس پہ شارٹ ویڈیوز پہ بات کر رہا تھا کہ آج کل ہو کیا رہا ہے. دیکھو دل کی عادت ہوتی ہے, دل کو اپنی راحت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, خوشی کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, دل کو وہ چیز نہیں چاہیے جو اس کو ٹینشن دے. لہذا دل کیا کرتا ہے, جب ہم جاتے ہیں نا جو شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, رول کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ کتنی زبردست ویڈیو, اب دوسری ہونی چاہیے, تیسری ہونی چاہیے, چوتھی ہونی چاہیے, پانچویں ہونی چاہیے, چھٹی ہونی چاہیے, ٹھک ٹھک پوری رات لوڈے لپاڑے لگے رہتے ہیں اس میں. جتنے بھی نفسیات کے ماہر ہیں, بلکہ مشاہدہ کر لو, یہ چیز دماغ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے, انسان کے کھوپڑی کو تباہ کر دیتی ہے. یہ کسی ماہر نفسیات کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں اس نے بتایا, ایسی علمی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں, کہ فن لینڈ, یورپ کا ایک کنٹری ہے فن لینڈ, وہاں ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بہت پیسہ خرچ کیا کہ بچوں کی کتابوں سے جان چھڑاؤ, اب ڈیجیٹل دور ہے, تو بچوں کو ٹیب دے دیا اور آن لائن ٹیچنگ شروع کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا دے دیا بچوں کو؟ ٹیب. بھائی ٹیب میں یہ ساری کتابیں ہوں گی اور نیٹ سے ہی سب کچھ پڑھیں گے, اور اس کے پیچھے یہ فلسفہ تھا, کتابوں کی دنیا سے نکلو, اب ٹیچر کی دنیا سے نکلو, آن لائن ٹیچنگ, آن لائن ٹیچر, سب آن لائن. بہت پیسہ خرچ کیا, اس کے جو بھیانک نتائج سامنے آئے نا, تو پھر اچھا میں نے یہ ویڈیو, فن لینڈ میں ہمارے دوست ہیں, وہ ٹیچر رہے ہیں اسکول میں, پہلے ان کو بھیجی, کیونکہ انٹرنیٹ کی ہر خبر قابل اعتماد نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی دیکھا, کوئی کلپ دیکھا, فوراً بیان داغ دیا, ابے بھائی ہو سکتا ہے پھینک رہا ہوں لمبی لمبی, ہمیں کیا پتا. تو فن لینڈ میں مجھے سہولت یہ حاصل ہے, پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے ہر جگہ سلام دعا ہے. ابھی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر سے ملا ہوں, ہیں پاکستانی لیکن کافی سالوں سے وہاں پڑھا رہے ہیں, بہت خدمات ہیں ان کی, تو ان سے بھی انشاءاللہ استفادہ ہم کریں گے. اور میں نے کہا کہ اگلے ٹرپ میں آپ کی یونیورسٹی میں جاؤں گا, آپ کے لیکچر میں بیٹھوں گا انشاءاللہ میں. تو وہ ٹاپک کیا ہے وہ پھر بعد میں بتاؤں گا آپ کو, جس ٹاپک پر میں بات کروں گا. خیر, یہ ہمارے جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان میں, یہ بہت الو بنا رہے ہیں لوگوں کو. آج کل ایک انٹی آئی ہوئی ہیں, وہ پھینکتی جا رہی ہیں, لوگ لپیٹ رہے ہیں بیٹھے. کہہ رہی امام غزالی جو ہے نا, امام غزالی وہ سائنس کے خلاف تھے. دیکھو کچھ دیسی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں, اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, لیکن ان کی تحریک کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو زیرو کر کے دکھایا جائے اور مسلمانوں کو ان کی نظر میں گرا دیا جائے. بولے تم کسی کام کے نہیں ہو, تم بالکل بیکار لوگ ہو. تو دعویٰ ان کا زبان سے یہ نہیں ہوتا, لیکن اس کا رزلٹ یہی نکل رہا ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کو نا جوتا دکھاتے رہنا, بس تم 2 ٹکے کے نہیں ہو, 2 ٹکے مغربی دنیا کا سپیریئر ہونا آپ مان لو, اور جب آپ ان کو سپیریئر ہونا مانو گے نا, تو آہستہ آہستہ ان کے نظریات کو بھی فالو کرو گے آپ. تو امام قیصر احمد راجہ کو اللہ جزائے خیر دے, اکیلا کھڑا ہوا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جواب دینے کے لیے, ایسے دیسی لبرل کے مقابلے میں. امام غزالی سائنس کے خلاف نہیں تھے. اگر وہ سائنس کے علی الاطلاق مخالف ہوتے, اس دور میں بھی, اس کے بعد میں بھی مسلمانوں نے سائنس کے ہر شعبے میں ٹھیک ٹھاک ترقی کی ہے. گورے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 15ویں صدی تک یہ ہوتا رہا ہے. 15ویں صدی سے پہلے تک انگریز ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. وہ قرآن و سنت تھوڑی پڑھے تھے, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ رہے تھے. وہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر پہنچے ہوئے, ہمیں یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم 500 سال لگتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے. امام غزالی جس فلسفے کے خلاف تھے, وہ فلسفہ تھا جو ہوائی باتوں پر ہو. مسلمانوں میں جو کیمسٹری تھی, اس میں کچھ لوگوں نے لمبی لمبی پھینکنا شروع کر دی کہ ہر چیز کو سونا بنانا ممکن ہے. بہت سارے سائنسدانوں کی عمریں اس میں برباد ہو گئی کہ یوں اس سونے کو فلاں دھات کو فلاں دھات کے ساتھ ملایا جائے اور یہ کام کیا جائے تو اس سے سونا بن جائے گا. اس طرح کی کچھ سائنس کی بیسس پر کچھ فضول چیزیں ہماری سوسائٹی میں شامل ہو گئی تھی. امام غزالی جیسے لوگوں نے ان پہ رد کیا ہے, علی طلاق فلسفے اور سائنس پہ رد نہیں کیا. امام ابو یوسف سے بھی منقول ہے, حکمی فی اہل الکلام یضربوا بالجرید والنعال. امام حنیفہ کے شاگرد ہے نا امام ابو یوسف, وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کلام جو پڑھتے ہیں نا, میرا حکم ان کے بارے میں یہ کہ ان کو جوتوں سے مارا جائے. تو وہ علم کلام وہ نہیں تھا جو فائدہ والا علم کلام ہو, وہ علم کلام تھا جو بحث برائے بحث, جس کا کوئی سوسائٹی کو فائدہ نہیں تھا, فضول بحثیں. ورنہ امام ابو یوسف کا دور تو میرے بھائی بنو امیہ کا کہ عروج کا دور تھا. اس وقت تو مسلمان سائنسدانوں کا بھی راج تھا. دنیا مسلمان توپیں بنا رہے تھے. سلطان محمد فاتح نے اس وقت یعنی 7ویں صدی ہجری میں دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. دنیا کی سب سے بڑی توپ
کا सेहरा किसके पास था? मुसलमानों के पास था. और मैंने अलजायर की तोपें फ्रांस में अपनी आंखों से जाके देखी हैं, जो मुसलमान साइंसदानों ने बनाई थी. अरबी में उन पर तारीखें भी लिखी हुई हैं, मैंने व्लॉग भी बनाया था उसका. फलकियात का इल्म हो, मेडिकल साइंस का इल्म हो, हर मैदान में हम आगे थे. लेकिन आज कुछ देसी ऐसे पैदा हो गए जो आपको नीचा दिखाते रहेंगे. पहले सवाल कायम करेंगे, बताओ इतनी सारी इजादात में आज मुसलमानों की इजाद कौन सी है? कितनी इजादात हैं? जवाब जीरो. पंखा किसने बनाया? गोरों ने बनाया. मोबाइल किसने बनाया? गोरों ने बनाया. और भाई मानते हैं सारी इजादात इनकी हैं. इन इजादात की ये जो साइंसी तरक्की आज जहां तक है, ये अचानक थोड़ी हो गई है. देखो, आप जब एक बिल्डिंग बना रहे हो, आपने पहले खोदा, सरिया डाला, जो मुश्किल काम था, उसकी बुनियाद डाली, जो मुश्किल काम था, फिर आपने उस पर इमारत खड़ी करनी शुरू की, मुश्किल काम था. अब जब उसकी फिनिशिंग का टाइम आया, उससे फायदा उठाने का टाइम आया, किसी दूसरे ने आके कर दिया, तो सारा क्रेडिट तो वो ले जाएगा. ये ऐसा ही है जैसे जमात इस्लामी के सारे प्रोजेक्ट जो जमात इस्लामी ने शुरू किए थे कराची में, तो मुस्तफा कमाल साहब ने आके उसकी तकमील कर दी. सारा क्रेडिट किसको चला गया? सही गया, चलो तकमील तो की ना, अच्छा काम किया, मैं तो मुस्तफा कमाल को इसका देता हूं क्रेडिट. वो ये भी कर सकता था ना करे, लेकिन बुनियाद किसने रखी थी? नेमतुल्लाह खान ने. मेरे भाई, इन साइंसी उलूम की बुनियादें मुसलमानों ने रखी हैं. अब फल खाने का वक्त आया है, तो आखिरी में ये लोग आए हैं और इन्होंने, अच्छा, उस खातून ने गड़बड़ क्या की है? उस खातून ने कहा देखो अल्लामा इकबाल ये करते हैं, अल्लामा इकबाल ने क्या लिखा है, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के जवाल किया. अबे भाई, अल्लामा इकबाल की आधी बात नकल कर रही हो. अल्लामा इकबाल ही का शेर है, किताबें अपने आबा की जो जाके देखी यूरोप में. पूरा शेर ही बता दो यार, एक तो शेर में हमेशा मेरे साथ यही होता है. मगर वो इल्म के, कोई इंसान का बच्चा है तो शेर पढ़, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो जाके देखी यूरोप में, तो दिल होता है सिपारा. कहते हैं मैंने अपने बाप दादा की जो साइंसी उलूम की, यूरोप में कुरान और सुन्नत की तफसीरें थोड़ी रखी हुई थी. अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं जब यूरोप में जाके अपने बाप दादाओं की जो साइंस की किताबें हमने यूरोप की यूनिवर्सिटियों में देखी, तो मेरा दिल 30 टुकड़े हो गया कि इन किताबों से इन्होंने फायदा उठाया, हम पीछे रह गए. लेकिन फायदा हमारी ही किताबों से उठाया उन्होंने. 400 साल तक हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे ये लोग. लेकिन आज कुछ देसी कमबख्त ऐसे आ रहे हैं जो हमेशा तुम्हें जूता दिखाते रहेंगे. तो ये है वहीं के, इनका काम है. मैं ज्यादा नहीं जाता, फिर लोग कहते हैं मुफ्ती साहब जज्बाती हो रहे हैं. तो इन लोगों से होशियार रहो. तभी मैं कैसर अहमद राजा का इसलिए रेफरेंस देता हूं कि इन लोगों को, इन्हीं के जबान में जो सही बंदा काम कर रहे हैं ना, इनकी जबान में अल्लाह जज़ाए खैर दे. कैसर अहमद राजा, तो आप जो मुसलमानों में आज खराबी है वो बताओ. हमारे बाप दादा ऐसे नहीं थे जैसे हम हैं भाई. हमारे असलाफ और हमारे बाप दादा आज से 500 साल पहले तक 1000 साल मुसलमानों की तारीख में ऐसे गुजरे कि एक हिंदू का बयान मैंने खुद सुना, हिंदू स्कॉलर का, कहता है आज आपको साइंस की हर फील्ड में मुस्लिम भी नजर आएंगे, हिंदू भी नजर आएंगे, सिख भी नजर आएंगे, अंग्रेज भी नजर आएंगे, हर तबका नजर आएगा, जापानीज भी नजर आएंगे, फ्रेंच भी नजर आएंगे. लेकिन दुनिया ने 1000 साल ऐसा देखा है कि किसी भी फील्ड में मुस्लिम साइंटिस्ट के अलावा कोई और नाम आपको नहीं मिलेगा. ये हमारी तारीख का एक शानदार हिस्सा है, जिसको आज ये देसी लिबरल लोग क्या कर रहे हैं? मस्क कर रहे हो. क्या इमाम गजाली ने फलसफे की मुखालफत की? भाई, इमाम गजाली ने उस फलसफे की मुखालफत की थी जो मुसलमानों में कुछ ऐसे फलसफी लोग भी थे, जैसे कहते थे हर चीज 4 अनासर से मिलकर बनी, आग हवा मिट्टी पानी. इसकी कोई दलील नहीं थी, वो फेंक दी उन्होंने. हर चीज को सोना बनाना मुमकिन है, फेंक दी. तो इन चीजों की मुखालफत की इमाम गजाली ने. बात को जल्दी से समेटता हूं, वक्त पूरा हो गया है, टाइम कम, मुकाबला सख्त. आपका काम है जहां से बात छोड़ी वो बता दिया करें, टाइम इसी में हमारा काफी जाया हो जाता है. हाँ, तो मैं बता रहा था फिनलैंड में उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन वो सेटअप शुरू किया कि बच्चों के हाथ में टैब होगा और बस कंप्यूटर पे ऑनलाइन, टीचर भी रिकॉर्डेड टीचर. तो मैंने अपने एक दोस्त है टीचर है, उनसे तस्दीक करवाई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा था. तो उस पर फिर कंट्रोल किया गया है. उनको जब भयानक नताइज सामने आए ना कि बच्चों की खोपड़ी क्या हो रही है, इससे हर वक्त टैब सामने रख रख के खोपड़ी क्या हो रही है, खराब. तो अब वो ऑनलाइन है, टैब का इस्तेमाल भी है, लेकिन महदूद इस्तेमाल है. लेकर किस पे आ गए वो दोबारा? किताबों पर. तो इसलिए ये जो मोबाइल हर ठक 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 चल रहा होता है ना, इससे खोपड़ी खराब होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता. हम बार बार आपसे एक बात कहते हैं, देखो मोबाइल या एंड्रॉइड मोबाइल, स्मार्टफोन या कंप्यूटर के सामने बैठने से पहले सोचा करो मैं क्यों बैठ रहा हूं. ये घोड़े की तरह है, घोड़े पे बैठने से पहले सोचता है किधर जाना है, क्योंकि अगर बैठने से पहले नहीं सोचा तो फिर घोड़ा बताएगा तूने किधर जाना है.
आपको पता नहीं, आप घोड़े में बैठ गए, घोड़ा भी तेज रफ्तार। एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत तेज रफ्तार घोड़ा था। पहले तो मैंने उसको बताया इधर जाना है, मैं उधर चला गया। अच्छा, घोड़े की वो जीन भी नहीं थी, यानी बिल्कुल उसकी नंगी पुश्त पे बैठा मैं, सिर्फ वो थे उसके नहीं होते जो पांव फंसाने वाले। हम जब सीधा सीधा गए तो मैंने घोड़े को घुमाया, उसको समझ में नहीं आया तो वो ले गया मैं कहीं कच्चे में। अब मुझे लगा था कि इसी गड्ढे में गिरेगा, तो इससे पहले कि वो हमें गिराता हमने कहा खुद ही छलांग लगा के गिर जाओ। तो ये पुरानी बात है, उस वक्त हम बिल्कुल फरेरे से हुआ करते थे, बारीक से होते थे। लोग कहते थे हैं भी, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, इतना बारीक होता था मैं। तो 23-24 साल उम्र थी मेरी, तो बहुत बारीक सा था मैं। तो मैंने कहा इससे पहले कि घोड़ा मुझे घुमा के कहीं गिराए, मैं खुद गिर जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। तो मैंने खुद छलांग लगाई। तो वजह क्या है, घोड़े को आपने ये तो बता दिया कि यहां तक आगे दीवार थी, आगे घोड़े को पता नहीं था, तो उसने फिर अपनी मर्जी से जाना शुरू कर दिया। तो ये जो मीडिया है ना, स्मार्टफोन है, ये भी घोड़े की तरह है। अगर आपने इसको पहले गाइड नहीं किया कहां जाना है, तो फिर आप आके बैठ गए, ये आपको ले जाता रहेगा। एक क्लिप देखोगे, दूसरा क्लिप देखोगे, तीसरा क्लिप देखोगे। जितने माहिर नफ्सियात डॉक्टर से आप उनसे पूछो, ये आपके दिमाग को ऐसा डैमेज कर रहा होता है ना, ऐसा डैमेज के बावले हो जाओगे, पागल हो जाओगे थोड़े दिनों में। और छोटे बच्चों के लिए तो इंतहाई जहर है। बच्चों के बेहोश होने के वाकयात भी आ रहे हैं सामने, बेहोश हो जाते हैं, मां बाप परेशान है, क्यों हो रहा है भाई? तुम सारा दिन स्क्रीन मोबाइल देखता है वो छोटा बच्चा, सारा दिन वो एलईडी के सामने। बच्चे जब कार्टून देखते हैं ना, तो उस कार्टून की दुनिया में घुस जाते हैं वो। उनको ये नहीं लग रहा होता फेक है, वो समझते हैं ओरिजिनल ये है, और ये में हमारे अब्बा कार्टून है, अम्मा कार्टून है। आप मजाक समझ रहे हो, हकीकत यही है। बच्चा उस स्क्रीन को ओरिजिनल में ले रहा होता है, वो उस दुनिया में खो जाता है। वो कोई डरावनी चीज देखेगा, रात को ख्वाब में देखेगा, वो उसके दिमाग में उतर। और फिर ये जो बचपन की दिमागी बीमारियां, ये मौत तक जाती नहीं है। बच्चों को स्क्रीन से हटाओ, बच्चों को मिट्टी में खिलाओ, नंगे पांव कीचड़ उठा उठा के थोपे एक दूसरे पे। ये बच्चों में पाया छुई हुई बना दिया है बच्चों को। हर वक्त ऐसा बिल्कुल साफ सुथरा करके, नीट क्लीन करके उनको कंप्यूटर के सामने बाकायदा जैसे कोई कुरान ख्वानी हो रही है यहां पे, नला धुला के उसको पूरा तमीज से बिठाते हैं और कार्टून लगा दिया सामने। वो कार्टून ही बनेगा थोड़े दिनों में। वो उसको खेलो, गली महल्ले में जाए, बच्चों के साथ खेले। तुम एक तो बहन भाई भी नहीं दिए उस कमबख्त को। एक भाई है, उसके 6 साल के बाद एक बहन है, उसको अपने करीबुल उम्र कोई मिल ही नहीं रहा खेलने के लिए, वो तो वैसे डिप्रेशन में जाएगा। फिर बच्चों से भी नहीं खेलने देते उसको ऐसा। मुझे याद है, ये अलखिदमत हॉस्पिटल है ना, इसके साथ एक पार्क है। एक बच्चा छुई मुई इसी बर्गर फैमिली का, कहीं बेचारा पहली दफा वो पार्क में सीढ़ियों पे हल्का सा चढ़ गया। उसके स्टाइल से ऐसे लग रहा था जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ। गिरा है, हल्की सी खराश आई है, इतनी सी मामूली सी। उसकी मां की जो चीखें थी ना, उफ, हॉस्पिटल में लेके आई, हाँ डॉक्टर साहब मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैंने कहा क्या हो गया यार? हमारे दौर में तो लौंडे लपाड़े बादाम तोड़ने के लिए दरख्त पे चढ़ा करते थे, अक्सर के पुर्जे अलाइनमेंट आउट रहती थी। हमने खुद बादाम के दरख्तों पे चढ़े हैं, यहां से पत्थर मारे, लगा किसी, अल्लाह माफ फरमाए, किसी अंकल के सर पे। उसने उतना जोर से नहीं लगा, उसने जो हमारे लगाया वो उसके इतनी जोर से नहीं लगा था जितना हमें लगा। खैर ये तो बहुत बेहुदा हरकत है, पत्थर वत्थर ना मारने दे बच्चों को, सर पर पड़ जाएगा। लेकिन भाई बच्चों को बच्चों वाले काम करने दो, उनको लड़ाई झगड़ा करने दो, चमेटे शमेटे मारने दो। बच्चे चलते खेलते मारते पीटते शिकायती टट्टू भी बनने दो उनको छुई मुई मत बनाओ, एकदम नीट क्लीन करके हर वक्त कंप्यूटर के सामने। मां बाप एक तो पैदा कर नहीं रहे बच्चे, ऊपर से एक आध बच्चा होता है, उसको कहते हैं कि हाँ एक्चुअली बहुत मुश्किल काम है भाई, ऐसे बनाने होता है। मुफ्ती साहब पाल के दिखाओ ना बच्चे तुम्हें। अब हम तो पाले 19 पाले हमने, सारे काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी पल रहे हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह नजर बस से बचाए। कैसे पाले हैं? खेल कूद रहे हैं बच्चे, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, मारम पिटी भी होती है, रोते भी है, चीखते भी है, हंसते भी है, सब कुछ चल रहा है मार्केट में। तो इस तरह बच्चा पलता है। ये तुम लोगों ने क्या, एक बच्चा है उसको लिए भी इतनी टेंशन, बहुत मुश्किल है। सारा दिन एलईडी के सामने बिठा दिया उसको। तो ये मां बाप अपनी टेंशन बचाने के लिए कर रहे होते हैं ये। तो अपनी टेंशन बचाने के लिए बच्चे की खोपड़ी का बेड़ा गर्क मत करो, और ना अपनी खोपड़ी का बेड़ा गर्क करो। फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को खपाओ, और थोड़ा बहुत मोबाइल भी देख लेना चाहिए, लेकिन ये सोच के देखना चाहिए कि मैंने देखना क्या है, ये पहले फैसला करो। वरना मोबाइल तुम्हें ऐसी जगहों पे ले जाएगा, गुनाह भी करवाएगा तुमसे, और तुम्हारी दिमाग और खोपड़ी को भी क्या कर देगा, खराब। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।